السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 27 جمادی الثانی 1422 ہجری مطابق 15 ستمبر 2001 عیسوی کو مکتب ترتیل الجالیات قبا کی طرف سے جو منطقہ قصیب میں ہے یہ جلسہ عام منعقد ہوا ہے. اس جلسہ عام میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا مجھے حکم ملا ہے وہ موضوع ہے اسلام اور قبروں کی پوجا. حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ میری چند تقریروں میں سے ایک بڑی عجیب و غریب تقریر ہے، جو آج سے تقریباً 8 یا 10 سال پہلے میں نے جمعے کے خطبے میں اس موضوع کی اچھی طرح سے وضاحت کی تھی. آج اخوان کا مطالبہ ہوا کہ اسی موضوع پر لب کشائی کی جائے تاکہ ہمارے دوستوں اور ہمارے بھائیوں تک وہ حقیقتیں بے نقاب ہو کر کے سامنے آ جائیں جنہیں بہت دنوں تک اور برسوں تک پردے راز میں رکھا گیا ہے. حضرات، تو آئیے اللہ کی توفیق سے میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق بولنے، حق بات کے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس موضوع کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کے بیچ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا افغانستان کے اندر ایسے اشخاص موجود ہیں جن کی پہچان اور جن کی شناخت بڑی آسانی کے ساتھ ہر ایک انسان کر سکتا ہے. سروں کے اوپر لمبی چوڑی دستار اور ہاتھوں میں لمبی
चौड़ी तस्बीहें और लंबे चौड़े जुब्बे और खुब्बे पहने हुए शाह के नाम से या पीर के नाम से या सज्जादा नशीन के नाम से बैतें करने वाले लोग मौजूद हैं। हर एक उनका हुलिया देखकर, उनकी शक्ल व सूरत देखकर आसानी के साथ पहचान लेता है या पहचान सकता है कि ये किसी दरबार के मुजावर होंगे या किसी खानकाह के पीर होंगे। लेकिन हकीकत यह है मेरे अजीज़ कि ये लंबे लंबे जुब्बे, ये बड़े बड़े दस्तार, ये लंबी लंबी दाढ़ियाँ और हाथों में लटकाई हुई पकड़े हुए ये तस्बीह, ये गंदुम नुमा जो फरोश, ये इंसानों की शक्ल में इस्लाम को बर्बाद करने वाले शैतानी भेड़िए हैं जो कब्रों की और मज़ारों की तिजारत करते हैं और उसकी कमाई से अपना पेट भरते हैं। इस बात की बेहद ज़रूरत है कि आज दुनिया में इनकी निकाब कुशाई की जाए ताकि हमारे जैसे भोले भाले मुसलमान जो अपने नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद अकीदत और मोहब्बत करते हैं, इनकी रीछा दवानियों और फरेबकारियों से आगाह हो जाएं और इस्लाम की हकीकी और असली शक्ल व सूरत उनके सामने आ जाए और वो सही रास्तों पर आ जाएं। ये इस वक्त का नहायत ही हसास नुक्ता, इस दौर का नहायत ही सुलगता हुआ मौजू है और अल्लाह की तौफीक से इस मौजू पर जो 8-10 साल पहले मेरी तकरीर हुई है, जो कैसेटें दुनिया के अंदर फैली हैं, बेशुमार और हजारों लाखों की तादाद में हमारे दोस्तों ने, इस्लाम के जयालों ने, इस्लाम की गैरत रखने वालों ने जब इन बातों को सुना है तो अल्लाह के फजल व करम से उनके सीने जगमगा गए, कुरान और सुन्नत की रोशनियों से उनके कलेजे ठंडे हो गए और उन्होंने इससे तौबा की और अल्लाह के फजल से वो तौहीद और सुन्नत की राहों पर गामजन हो चुके हैं। मेरे अजीज, इस मौजू के बयान करने का जो मकसद है इसके सिवा कुछ भी नहीं कि इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी सही मंजिल दिखला दी जाए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की रोशनी में इन मज़ारों के उर्स और मेले, नाच और गाने, नजरो नियाज, कव्वालियों और भगड़ों की हकीकत को लोगों के सामने खोल करके बयान किया जाए। किसी की दिलाजारी मकसूद नहीं है और ना ही किसी के ऊपर तंज करना मकसूद है, चूंकि ये बंदे नाचीज भी आज से कुछ दिनों पहले तकरीबन 1982 के अंदर 1982 से पहले ये नाचीज भी इन्हीं कब्रों का रसिया रहा है और इसी मैदान का खिलाड़ी है और इन्हीं धूम धड़कों, मेलों और ठेलों का बहरहाल वो रसिया था और पीर का खास मोतक़िद था, बल्कि उनका खास खादिम भी था। मैं अंदर और बाहर का जानकार था। इसलिए ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उन हजरात से ज़्यादा जानकारी हासिल है जो सिर्फ मुरीद होते हैं, जो सिर्फ उनके जूते उठाते हैं, जो सिर्फ पीरो मुर्शिद के ज़ाहरी आमाल को देखकर उनके हाथ और पाँव को चूमते और चाटते हैं। और आपको पता है ये मसल अच्छी तरह से मशहूर है कि घर का भेदी लंका ढाए। मैं चूंकि इस माहौल का परवरदा, इस माहौल में मैंने आंखें खोली और मैं अंदर और बाहर का जानकार मेरे अजीज। लेकिन जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझ नाचीज को हिदायत अता फरमाई और इस जलालत व गुमराही से मैंने तौबा किया तो दिल में एक टीस उठती है, दिल में एक दर्द उठता है कि अपने मुसलमान भाइयों को भी उन हकीकतों से आगाह कर दूं जो खुद मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, जो खुद मैंने किए हैं, ताकि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई जो इस दलदल में फंसे हुए हैं, अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमाए और वो भी सीधी राह पर आ जाएं। मेरा काम सिर्फ इस्लाम की बातों को